So in the previous example, right, the text manipulator class, right? So if we want to describe the responsibility of that, we need to say the text manipulator class has the responsibility of manipulating, okay, or updating the text and displaying, right? So whenever this AND word is coming, so it can give you some indication that you are breaking the SRP principle. But that justification will come from the experience and based upon what your business requirement is. There is no hard and fast rule कि this should follow the, मतलब यही है single responsibility, right? Over engineering करोगे तो it will create a lot of other problems as well. So it's better कि whatever you think is the right responsibility and you can convey that responsibility, there you should draw a boundary for the SRP principle. In the second principle, right, that was the O. What was the O principle? Open close principle, right? So what was open close principle? The class should be open for extension but closed for modification. Yes, Amarjit, right. Closed for modification but open for extension, right? So what exactly that means? We saw this example, right? You had some, probably this is withdrawal class, withdrawal, and this is bank account, this is savings, or probably this is current account, and this was savings account. So if it uses both these accounts, that means if this withdrawal service has the knowledge about this current account and the savings account, probably it is an indication that it is breaking open close principle, right? Why? Because the third account that will come, again this withdrawal service needs to be aware about this third type of class that was introduced, third type of account that was introduced, right? So for that, we should have some kind of a general hierarchy from where these things will be derived, and this bank withdrawal service, अब ये कैसा दिखने लगेगा? विड्रॉल सर्विस जो है, ठीक है, ये अकाउंट, ठीक है, now you have this savings account, saving, you have this current account, current, and this uses account, so it is not aware about the saving or current, right? If we implement like this, probably we will adhere with the open close principle, right? Because as soon as we introduce a new account here, as this is not aware about this and this, so probably we are not going to do any of the change here for the new account introduction, right? So if we implement in such a way, probably we'll achieve open close principle as well, right? Next, what we saw, the L principle, right? Litvok substitution principle, right? So as the name suggests, substitution principle. So something it has relation with the substitution, right? Now we saw inheritance is a relationship, right? Is a relationship. So whenever we say ki mango is a fruit, right? Mango is a fruit. Guava is a fruit. That means mango can be put at any place where someone is asking for fruit, right? Mango can be put at any place where someone is asking for fruit. So this substitution principle says every subclass or the every child class, should adhere to all the contract provided by its superclass. So where it was breaking, we saw, right? कि account में क्या था? You had two contract method. That was the probably deposit, and the other one was withdraw, right? And then we realized a new account type comes in, that is, let's suppose the PPF account, but it does not have a withdraw supported, right? It does not have a withdraw facility. So we can't say that PPF is supporting all the contract of this account, right? So to solve that, what we did, we need to enable a more hierarchy, something like the withdrawable account and probably non-withdrawable account, and all these account PPF and others will be getting derived from that non-withdrawable, and whoever is, let's suppose, the savings and currents will be derived from this withdrawable, right? And these will having the parent as the account. ठीक है, तो ये हमने देखा सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के लिए, राइट? यहां तक कोई डाउट इस तीन प्रिंसिपल में जो अभी तक हमने कवर किया है? एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट. एनी डाउट टिल हियर? ये तीन क्लियर है? ये हमने पहले भी देखा, राइट? एनी डाउट टिल हियर?
till this point? ठीक है. So the next principle is I, right? So I stands for interface segregation. ठीक है. सबसे easy principle is interface segregation principle only. ठीक है, इसको देखते हैं. नाम से क्लियर है, राइट? इंटरफेस सेग्रीगेशन मींस वी नीड टू सेग्रीगेट द इंटरफेसेस. इंटरफेसेस मींस वी नीड टू सेग्रीगेट द कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या है कि एवरीवन इन देयर हाउस यूज्ड टू हैव मेड, राइट? Maid or probably the house worker or something like this, right? So can anyone say ki what all job that particular maid does in your house? Anyone? हाउसमेट जो होता है वो क्या काम करता है घर में? Probably cleaning, yeah. Any other job? Washing utensils, ठीक है. झाड़ू पोछा, राइट? हाँ. So cleaning, washing utensils and probably झाड़ू पोछा is on the similar front. कोई और काम करता है हाउस में? कोई बैचलर रहा होगा तो उसको पता होगा, खाना भी बनाता था. Probably sometimes the maid only cooks also, right? कोई कोई सेपरेट कुक रखता है, कोई कोई किसी के यहाँ मेड ही कुक करती है, राइट? यस और नो? एंड किसी किसी के यहाँ की कुछ लोग जो कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं, ठीक है, दे हैव दिस इन हाउस सर्वेंट, राइट? इन हाउस सर्वेंट. या फिर अभी सीरियल कोई देखता होगा तो प्रोबेबली कौन सा सीरियल है जिसमें इन हाउस सर्वेंट आया जिसकी वजह से बवाल चल रहा है? नो वन वॉच ए सीरियल है, वो अनुपमा करके है ना? नो आइडिया, ठीक है. सो देयर इज अ सीरियल कॉल्ड अनुपमा, उसमें सेम थिंग है, राइट? इन हाउस सर्वेंट, राइट? इन हाउस मेड, ठीक है. सो इन हाउस अगर मेड है, राइट, तो ही डज सम जॉब, राइट? वो क्लीनिंग भी करेगा, ठीक है. समटाइम्स मतलब वो कुक भी करेगा. ही विल बाय द ग्रोसरीज एज वेल, राइट? तीनों काम करेगा, क्लीनिंग, कुकिंग एंड बाइंग ग्रोसरीज, राइट? तो किसी को ये नहीं पता था, राइट, कि प्रोबेबली लेट्स सपोज कि तुमने कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, ठीक है, फॉर द हाउस सर्वेंट, राइट? सो तुमने बोला कि मेरे घर का सर्वेंट तो प्रोबेबली क्लीनिंग भी करता है, कुकिंग भी करता है, ग्रोसरी भी बाय करता है. तो आई विल डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेट्स सपोज हाउस मेड, ठीक है. और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या रखूंगा, ठीक है? क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग, प्रोबेबली ग्रोसरी एंड प्रोबेबली कुकिंग एज वेल, राइट? दिस वाज परफेक्टली फाइन इन योर केस, राइट? क्योंकि तुम्हारे घर का जो हाउसमेट था प्रोबेबली ही इज अ इन हाउस सर्वेंट एंड ही डज क्लीनिंग, ग्रोसरी बाइंग एंड कुकिंग, ऑल दोस थिंग्स, राइट? बट फॉर सम अदर पर्सन दैट मेड इज ओनली डूइंग दैट झाड़ू पोछा और प्रोबेबली द क्लीनिंग स्टफ, राइट? सो व्हेन that particular guy will implement this contract of a housemaid, ठीक है, it will implement the cleaning method but it won't have any of the knowledge about this grocery and the cooking method, right? क्योंकि वो करता ही नहीं है ये काम. So interface segregation principle सिर्फ ये कहता है कि interfaces should be thin enough, ठीक है, ताकि जो भी उसको implement करें probably it can implement all its behavior, ठीक है. तो इंटरफेसेस को इतना सेग्रीगेट करो कि ऑल द पर्संस हु इज इंप्लीमेंटिंग दैट इंटरफेस शुड प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन फॉर दैट मेथड. ये ना बोलना पड़े कि नो आई डोंट नो, अनसपोर्टेड एक्सेप्शन नहीं थ्रो करना पड़े, राइट? सो प्रोबेबली इट वुड बी बेटर टू प्रोवाइड सम इंटरफेसेस लाइक कि हाउसमेड, ठीक है, उसमें प्रोबेबली एक क्लीनिंग वाला, कुक, ठीक है, दैट विल प्रोबेबली डू द जॉब ऑफ कुकिंग, ठीक है, एंड देन प्रोबेबली ग्रोसरी के लिए कोई इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो, ले सपोज कि सर्वेंट टाइप का या कुछ भी, ठीक है, दैट हैज द कॉन्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड ग्रोसरी बाइंग, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर हाउसमेट, इट कैन इंप्लीमेंट ऑल थ्री, क्लीनिंग, ठीक है, इट कैन इंप्लीमेंट दैट ग्रोसरी बाइंग इंटरफेस एंड कैन इंप्लीमेंट दैट कुकिंग इंटरफेस एज वेल, ठीक है. एंड फॉर मी probably it can happen that it will implement that cleaning one but not the other one, right? So एंड जावा में और प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द थिंग्स में यू कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? क्योंकि इंटरफेसेस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? और हमने ये देखा है कि अ सिमिलर पर्सन कैन प्ले मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. अ पर्सन कैन बी अ फादर, ठीक है, अ ब्रदर, अ मैन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो एट अ सिंगल टाइम ही इज प्लेइंग मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? सो प्रोबेबली इट नीड्स टू प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन फॉर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है.
So when they can provide the implementation for multiple contracts, so contract should not be too heavy, contract should be too light. ठीक है, जितना मिनिमम सपोर्टेड है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट में मेथड पुट करने की जरूरत है. ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, कि प्रोबेबली फॉर ईच एंड एवरी इंटरफेस यू विल गिव ओनली वन मेथड. ठीक है, दैट्स आल्सो नॉट राइट. ठीक है, इसमें भी प्रोबेबली ऑन अ सिमिलर फ्रंट. ठीक है, सेग्रीगेट द इंटरफेसेस, मेक द इंटरफेसेस थिन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थिन का मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबली दैट इंटरफेस विल हैव ओनली वन मेथड. थिन का मतलब ये है कि इंटरफेसेस आर गोइंग टू हैव ओनली दोज मेथड्स. ठीक है, कि whoever is going to implement that interface is going to provide the implementation for all the contract method listed in that interface. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोबेबली. ठीक है, एनीवन कैन थिंक ऑफ एनी एग्जांपल. जैसे ये भी एक एग्जांपल ही था. एनीवन वांट टू थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल? एनीवन वांट टू सजेस्ट सम अदर एग्जांपल? ठीक है, it can be a car interface where the different features like brakes or driving, something like that, can be implemented. And different companies will, let's say Toyota will have a different implementation for, it might not give, Tesla will have auto driving facility or something like that. ओके, एग्जैक्टली. हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था प्रोबेबली. ठीक है, इस एग्जांपल में प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि लेट्स सपोज देयर इज अ इंटरफेस. ठीक है, ड्राइविंग इंटरफेस. ठीक है, जिसमें था प्रोबेबली ऑटो पायलट. ठीक है, प्रोबेबली था मैनुअल. ठीक है, एंड प्रोबेबली ऑटो पायलट था. ठीक है, अभी दो पकड़ के चलते हैं. ठीक है, ऑटो पायलट एंड मैनुअल, राइट? सो प्रोबेबली ऑल द जनरल कार्स, ठीक है, if it is going to implement this driving interface, right? So now they all need to implement this autopilot me and a manual. So for most of the cars will implement this manual one, but will not implement और इसका implementation नहीं provide कर सकता है normal car, right? This autopilot one. So an interface should not have the such methods. Probably we need to break the interfaces in multiple ways. ठीक है, एक interface होगा probably कि normal driving. ठीक है, normal driving interface, and the other interface will be the probably the autopilot, या probably some other name for that interface. And whoever car, let's suppose this Tesla, right? So Tesla is going to implement this both normal driving as well as the autopilot, क्योंकि उसमें manual भी तुम चला सकते हो and you can drive in a autopilot mode as well, right? But let's suppose कि तुम्हारा, let's suppose Toyota का कोई normal model, right? So he is going to implement that only manual driving mode. ठीक है, so the interfaces should be thin enough. ठीक है, so that all the classes that is providing the implementation और वो सारे contract method का implementation provide करेगा. ठीक है, I hope clear till here. ठीक है, now let's come to the D. ठीक है, dependency inversion. ठीक है, dependency inversion. ठीक है, अब ये क्या कहता है? ठीक है, लेट्स सपोज कि एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? कि यू आर क्रिएटिंग अ क्लास फॉर लेट्स सपोज कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर, राइट? नाउ यू हैव क्रिएटेड अ क्लास. ठीक है, कंप्यूटर. सो कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई या क्या 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 एक्सेसरीज अटैच करोगे? यू विल अटैच, ठीक है, अब प्रोबेबली अ कीबोर्ड, प्रोबेबली अ माउस, राइट? दो चीज तो एटलीस्ट अटैच करोगे. ठीक है, now you said कि hey, I have a gaming, let's suppose gaming keyboard, right? Or we have a gaming mouse because I wanted to create a gaming computer. So I'll say, ठीक है, कि I have a gaming keyboard. ठीक है, so you bought a gaming keyboard. ठीक है, you have attached with that, right? But अभी क्या था कि probably you are not able to, अब इस टाइम इतना पैसा नहीं था तो तुमने गेमिंग कीबोर्ड तो खरीदा बट गेमिंग माउस नहीं खरीदा. यू बॉट अ सिंपल माउस. ठीक है, you bought a simple mouse. So this particular your computer, ठीक है,
is going to have these two property. One is the gaming keyboard, ठीक है, and one is the simple mouse. Now, ठीक है, ये दो इसके properties है, right? Now, in future, let's suppose you are going to buy, क्योंकि जैसे ही पैसा आ गया तो you have bought a simple mouse के जगह पे एक गेमिंग माउस, ठीक है, तुमने क्या किया, सिंपल माउस की जगह पे गेमिंग माउस किया, राइट? नाउ व्हाट चेंजेस यू नीड टू डू इन दिस कंप्यूटर क्लास टू एडजस्ट दैट? यू नीड टू चेंज दिस सिंपल माउस, राइट? ये सिंपल माउस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंपल माउस की जगह पे क्या हो गया तुम्हारे पास, गेमिंग माउस, राइट? बट इट इज ब्रेकिंग दैट ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट? क्योंकि क्लासेस प्रोबेबली शुड नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई, ठीक है, बट उससे पहले एक बार ये आते, राइट? गेमिंग माउस को सिंपल माउस को गेमिंग माउस से चेंज करने का रीजन क्या था? व्हाई यू नीडेड टू चेंज दिस, राइट? ये इसलिए पड़ा, राइट, बिकॉज वी हैव, हमने एक ऐसे एंटिटी पे रिलाई किया, ठीक है, विच इज टू जनरल, मतलब जेनरिक नहीं है, मतलब सॉरी, इसको टू कॉन्क्रीट, ठीक है, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मतलब टू कॉन्क्रीट, राइट, कि इट इज प्रोन टू चेंज. जैसे सेम वे इन द ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट, चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? बिकॉज वी हैव रिलाइड, और द विड्रॉल सर्विस वाज रिलाइंग ऑन दैट सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट डायरेक्टली, ठीक है. उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, probably have the generic implementation, ठीक है, it will use only the generic implementation. So in this dependency inversion principle it says, ठीक है, कि any high level module, ठीक है, should not be dependent upon the concrete kind of a thing, rather it should rely on the abstraction, ठीक है. और abstraction कैसे अचीव हो सकता है? abstraction कैसे अचीव होता है? going up in the hierarchy, right, कि बहुत सारी चीजें जो abstract रह जाए. सिंपल माउस में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माउस, गेमिंग माउस? ये था गेमिंग माउस, ठीक है, ये है सिंपल माउस, ठीक है, और ये था लेट्स सपोज माउस, ठीक है. सो गेमिंग माउस में लेट्स सपोज कि यू हैव प्रोबेबली जो लेफ्ट, कुछ चीज तो होने वाली, राइट, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, इट इज गोइंग टू हैव इन बोथ द माउस, राइट, बट दिस गेमिंग माउस विल हैव सम कीबोर्ड एज वेल, मतलब की प्रेस एज वेल, राइट, and this simple mouse is not going to have anything like this. When we have exactly tied this simple mouse interface here, simple mouse class here, ठीक है, तब अपने को क्या करना पड़ा, for any of the new changes we need to change in our computer class, right? But what if we have relied on the abstract entities or a higher level entities like mouse? तो अगर मैं कहता हूँ mouse, ठीक है, computer class has this entry called gaming keyboard and mouse, ठीक है. So no matter whether you have a simple mouse or you have a gaming mouse, it can very well be supported without anything changing in the class, right? आज तुम्हारे पास सिंपल माउस था, वेल एंड गुड, ठीक है, प्लग कर दो. कल को तुम्हारे पास क्या आ गया, गेमिंग माउस, ठीक है, सिंपल माउस की जगह पे उसको प्लग कर दो, राइट? So without changing anything in the computer class, it's going to work, right? So all the entities, या जब भी तुम डिजाइन करो, ठीक है, तो should rely on the abstract view rather than a generic view. मतलब concrete implementation के साइड आने से अच्छा है कि always go on the abstract behavior, ठीक है. सेम वे यहाँ पे गेमिंग कीवर्ड था, इसके जगह पे प्रोबेबली तुम कीबोर्ड रख सकते थे, ठीक है. एंड चाहे तुम्हारे पास एक गेमिंग कीबोर्ड है, चाहे यू हैव अ सिंपल कीबोर्ड, यू कैन प्लग इट हियर एट रन टाइम, राइट. सेम वे ऑल दिस डिपेंडेंस, व्हाट इफ गेमिंग माउस डज नॉट हैव द राइट क्लिक फंक्शनलिटी, ठीक है. अगर तुम्हारे पास, इसीलिए मैंने बोला, राइट, कि ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज टुवर्ड्स बोथ ओपन क्लोज प्रिंसिपल एंड द सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है. अब क्या प्रॉब्लम है, अगर इस सिंपल जो गेमिंग माउस है, ठीक है, does not have a right click functionality, right? So in that case what we need to do, it has broken our substitution principle, right? Because now this gaming mouse is not a direct mouse, ठीक है. Gaming mouse probably is a special kind of a mouse, right? तो यहां से तुमको एक हायरार्की निकालने पड़ेगी, special kind of mouse, right? Then probably the gaming mouse will inherit from there, ठीक है. So this DI principle, ठीक है, or the probably the D1 here, dependency inversion, is a combination of the open close
एंड द सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। सो अगर तुम ओपन क्लोज प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल दोनों का टेक केयर कर रहे हो, तो द चांसेस आर प्रीटी हाई कि द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल आर ऑलरेडी बीइंग टेकन केयर ऑफ, राइट। अगर वो नहीं होता, राइट, कि अगर गेमिंग माउस डज नॉट हैव अ राइट क्लिक, राइट, तो हमारा यहीं पर ब्रेक हो रहा था। हम डी पे आने से पहले ही हम एल में ही ब्रेक हो रहा था ये कंसेप्ट, राइट। सो प्रोबेबली वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट हियर ओनली, एल प्रिंसिपल में ही, एंड देन प्रोबेबली वी वुड हैव अराइव्ड टू डी। और जब ये हम सॉल्व कर देते तो ये ऑटोमेटिक डी प्रिंसिपल सॉल्व हो जाता। क्लियर अमरजीत, और शुड बी टेक वन मोर टाइम? एनी फॉलो अप क्वेश्चन अमित? ओके, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? सो जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो प्रोबेबली स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम यहां से, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द एस, ठीक है। एस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टू यूज, ठीक है, सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट, मतलब सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई यूज द रॉन्ग वर्ड, सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड बट वन ऑफ द हार्डेस्ट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? प्रोबेबली सबको लगता है, राइट, कि सिंगल स्मॉल ट्री तो सबसे आसान है, बट यहीं पे वो प्रॉब्लम आती है कि आई डोंट हैव अ ग्रे बाउंड्री, राइट। हमारे पास वो एरिया नहीं है कि कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करना है, ठीक है। I'll have some different perception, you'll have some different perception, I'll have some different definition of responsibility, you'll have some different responsibility definition of responsibility, right? So start from this S, ठीक है, इसको फिगर आउट करो कि कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे होना है, ठीक है। देन O, ठीक है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टू फाइंड आउट कि ठीक है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इंस्टेड ऑफ द क्लासेस शुड गो विद द एब्स्ट्रैक्ट व्यू, ठीक है। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट में बात करना चाहिए, जैसे लाइक द विड्रॉल सर्विस विल टॉक टू द अकाउंट, नॉट द एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ दैट अकाउंट। जैसे सेविंग्स अकाउंट से नहीं बात करेगा, इट विल टॉक टू अकाउंट डायरेक्टली, ठीक है। देन वी हैव द सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। इफ विल टेक केयर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, दिस इज वन ऑफ द, मतलब ये इजीएस्ट टू फाइंड है, इजीएस्ट टू फाइंड, ठीक है, हार्डेस्ट टू फिक्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देख के पता चल जाएगा, राइट, कि प्रोबेबली गेमिंग माउस इज नॉट अ जेनरिक माउस, एफडी इज नॉट डायरेक्टली अकाउंट, पीपीएफ इज नॉट डायरेक्टली अकाउंट, उसमें कुछ और भी चीजें हैं, राइट। ये तुमको देख के बहुत इजीली पता चल जाएगा इफ द चाइल्ड क्लासेस आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मेथड, राइट। बट फिक्स करने के लिए तुमको पूरी की पूरी हायरार्की चेंज करनी पड़ेगी। तुमको एक नया क्लास इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो क्लास उसको एक्सटेंड करेगा, मेनी ऑफ द चाइल्ड क्लासेस यू नीड टू फिक्स, राइट। उसके बाद, ठीक है, ये सॉल्व होगा सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टू फाइंड बट हार्डेस्ट टू फिक्स। आई, इंटरफेस सेग्रीगेशन, सबसे इजी था, ठीक है। फाइंड करना भी इजी है, फिक्स करना भी इजी है। प्रोबेबली यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ सेपरेट इंटरफेस, ब्रेक इन मल्टीपल, मतलब ब्रेक दोस कॉन्ट्रैक्ट मेथड इन मल्टीपल इंटरफेसेस। डी, प्रोबेबली इफ यू टेक केयर ऑफ दिस O and L, that is the open close principle and the substitution principle, most of the chances are that dependency inversion is already taken care of, ठीक है। and most of the spring वगैरह का जो आता है dependency injection, right, this is also on the similar front, कि तुम्हारे पास हायरार्की है एंड रन टाइम पे यू कैन इंजेक्ट द बीन, ठीक है। जो तुम्हारे पास ये क्लास था, ठीक है, A, ठीक है, B and C, right? So probably whenever this class A needs some instance, अगर इस ये ऐसा है, right, ये दोनों है इस सुपर क्लास से इनहेरिट होता है, राइट। हाँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, या वही मैं बोल रहा था कि स्प्रिंग वगैरह का जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली ऑन अ सिमिलर लाइन व्हेन यू नीड टू इंजेक्ट बीन, ठीक है। प्रोबेबली तुम क्या बोलते हो, सुपर टाइप बता देते हो कि ठीक है ये इस टाइप का बीन है। एट रन टाइम पे तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा बीन जाकर के वहां पे इंजेक्ट होने वाला था। जैसे तुम्हारे पास अकाउंट है, ठीक है, तुमने बोला कि यहाँ पे अकाउंट का एक बीन इंजेक्ट होने वाला है, एक अकाउंट टाइप का बीन इंजेक्ट होने वाला है, राइट। अब कौन सा बीन होगा, सेविंग्स अकाउंट का बीन इंजेक्ट हो रहा है, चेक इन अकाउंट का बीन इंजेक्ट हो रहा है, या पीपीएफ का इंजेक्ट हो रहा है, ये प्रोबेबली तुमको रन टाइम पे पता चल जाएगा और द स्प्रिंग कैन टेक केयर ऑफ दैट, राइट। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क्स ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल, ठीक है। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का जो कंसेप्ट है इसी पे बेस्ड है। क्लियर टिल है?
किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, so probably we have seen till now this solid principle. ठीक है, next probably we'll start with either